Good morning, class. Myself Sachin Singh. I'm your IT teacher. Today we're gonna discuss about your new lesson, your first lesson in IT, name Database Management System (DBMS). In your book, these are some units. In this unit, first unit is database concept. The second unit, operating wave. The third unit is fundamental of Java programming, and the fourth and the last unit of work integrated learning ITDMA. Okay, now this is your first unit DBMS called Database Management System. What is database management system and how it is work? What we need, why we need database to create our files. Let us first introduction about DBMS. The key of organizational success is effective decisions making which require timely, relevant, and accurate information. It means to say every successful company wants to require to effective decision making skills. मीन्स कि जो भी कंपनियां हैं वो इफेक्टिव मेकिंग स्किल्स मीन्स आप कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हो, उस सबसे ही उसका टाइम मैनेजमेंट क्या है या आप कितने रिक्वायरेबल हो, कितने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को उस कंपनी को दे सकते हो. दिस इज कॉल्ड information, or hence information plays a critical role in today's कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. इस समय एनवायरनमेंट में हमें क्रिटिकल रोल जो इंफॉर्मेशन है वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं. देन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ मैनेजिंग द डेटा एंड एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज टू रिक्वायर टू सक्सेसफुली प्रोसेसिंग डेटा, take raw materials and processing, then after give you information like this. Okay, we shall learn about the basic concept of database management system. Let us see. The 1.2 is basic concepts and definitions. Basic concept क्या है, उसकी definitions क्या है? Let us see. Data is collection of raw facts. Data जो collection है वो raw facts का collection है, for means कि उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. डेटा जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 4 3 1 9, दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल डेटा कि ये है क्या, किसी का नंबर है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, क्या है ये मीनिंगफुल डेटा नहीं है. दैट्स कॉल्ड रॉ फैक्ट्स व्हिच हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू रिवील useful information. Information is produced by processing data as shown in the figure. Let this is data, raw facts after the processing and give you the informations like which informations give you to do another work. Okay, for example, given the data of the task, marks of the students in the class, the average student and the middle average student and the lowest one and the highest या topper one. Okay, तो इन सब की इंफॉर्मेशंस को कैसे हम कैरी करेंगे. लेट अस सी कि इसके लिए आप क्या करेंगे, एक समरी तैयार करेंगे कि आप इसमें टॉपर्स का देखेंगे कि 90 प्लस जो भी होंगे वो टॉपर्स होंगे. इसके बाद 90 से नीचे 75 तक, 60 to 75 तक आपके एवरेज रहेंगे. 60 से नीचे आपके जो होंगे वो पुअर पर्सन्स होंगे, पुअर होंगे. ओके, तो इस कंडीशन में आपने अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड कर दी है. इस कैटेगरीज में जिसके नंबर 90 प्लस आते हैं उसे आप कैटेगरी फर्स्ट में रखते हो, टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स में. जिसकी कैटेगरी आपकी मिडिल में आती है उसे मिडिल स्टूडेंट्स की लिस्ट में रखते हो, और जिस स्टूडेंट्स की कैटेगरी लोएस्ट में आती है उसे लोएस्ट स्टूडेंट में. दीज आर कॉल्ड इंफॉर्मेशंस, और इन इंफॉर्मेशंस को आप ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर सकते हो. अब इन जो एवरेज स्टूडेंट्स या फिर टॉपर स्टूडेंट्स हैं उसमें आप देखकर बता सकते हो कि सबसे टॉप नंबर्स किसके हैं. 98 पॉइंट, 99 पॉइंट्स, जो सबसे हाईएस्ट नंबर्स को अचीव करता है दैट इज कॉल्ड टॉपर्स, और जो सबसे लोएस्ट करता है वो फेल हो जाता है. लाइक दिस. ओके,
Now, for example, giving the data of the text, marks of the student. You also know about these are figure in these processing like this. Now, next is our database has the following properties. Properties database की क्या है? Let us see. First one is a database representing of some aspect of the real world, also called mini world. डेटाबेस एक मिनी वर्ल्ड की तरह है कि सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है विद फुल डिटेल के साथ. ओके, इट इज डिजाइन्ड बिल्ड एंड पॉपुलेटेड विद डेटा ऑफ स्पेसिफिक पर्पस. ये स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ये एक ही कार्य के लिए बनाए जाते हैं. लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी नोट्स को कैरी कर आपके डेटास को, लाइक स्कूल का स्कूल के डेटास को कैरी करता है. अगर आप ऑफिस के हो तो ऑफिस के एम्प्लॉयज के डेटा को कैरी करता है. इट कैन बी एनी साइज और ये किसी भी साइज का हो सकता है. इट कैन बी मेंटेन मैन्युअली या आप हाथों से भी मेंटेन से कर सकते हैं. नीड फॉर अ डेटाबेस. डेटाबेस की नीड आवश्यकता क्या है? लेट अस सी. इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स. ट्रेडिशनल टाइम्स में आप डेटा को फाइल्स में फॉर्म्स में सबमिट करते थे, फिल करते थे. देन अलग अलग फाइल्स के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा को आप स्टोर करते थे. यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती थी? लेट अस सी. दिस वन फिगर इज सेल्स डिपार्टमेंट. हियर every cell noted in this file 1 and the second one is payroll department. Every payment details information stored in this file 2. Both of the file is the same. Sales, एक पर्सन को आपने सेल्स दी, द सेकंड पर्सन को आपने उसी का पेमेंट लिया. तो इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ कंडीशंस क्या आती है? लेट अस सी. रिजल्ट क्या है? द वुड रिजल्ट इन डेटा रिडंडेंसी. द सेम डेटा इन अ मल्टीपल फाइल्स. सेम डेटा आपका एक मल्टीपल फाइल्स में आ जाता था. डेटा इनकंसिस्टेंसी, किसी भी फाइल्स को कैरी करना, सिमिलर फाइल्स के इंफॉर्मेशंस को अपडेट करना इजीली नहीं होता था. ओके. लैक ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशंस का भी लैंग्वेज आती थी. एज डेटा फाइल्स आर इंडिपेंडेंट, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मल्टीपल फाइल्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. मल्टीपल फाइल्स को कैरी करके फिर उनको डेटास को मेंटेन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क. That's why we need data management system. Let us see. Data management system या database management system, DBMS. DBMS, data management system, is a collection of programs that enables users to create, maintain and use a database. Database management system किसी भी वर्कर को या फिर कहीं किसी भी यूजर को अलाउ करता था कि वो इसमें मॉडिफाई कर सके, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, एक क्वेरी नुमा उसे क्रिएट कर सके जिसमें आपके फाइल्स में नेम, जेंडर, एज, मल्टीपल टाइप्स के जो इंफॉर्मेशंस होती है उसे आप एक्सेल के रूप में स्टोर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. This is and database management system like application programs run by DBMS software and stored in a database and definitions. Okay. The various options that need to be performed on a database are the follows. The first is defining the database. The second is populating the database, manipulating the database, sharing the database, protecting the database and maintaining the database. These are some advantages of a database. You can also learn it in your home. Some examples of DBMS are MySQL, Oracle, DB2, IMS, IDS. The most popular DBMS software is Oracle. The second one is MySQL. Okay, SQL means structured query language. Okay. Characteristics of DBMS management, database management system. means विशेषताएं क्या हैं, characteristics क्या हैं? Let us see. Self describing nature of database system. इसका self describing का nature है, खुद को describe करने का है, ये खुद describe कर सकता है, metadata को store कर सकता है, collaborate कर सकता है, data को redundancy कर सकता है. It contains the structure of the data and also the constraints there are imposed on the data. Insulation between programs and data.
ये डेटा और प्रोग्राम्स के बीच में भी रन हो जाता है। शेयरिंग ऑफ डेटा, ये डेटा को शेयर करता है इन मल्टीपल वेबसाइट्स। आपकी सबसे ज्यादा डीबीएमएस माइस्क्यूएल यूज होगा इन योर चैप्टर। माइस्क्यूएल या माइस्क्यूएल आपका डेटाबेस यूज होगा, और उस डेटाबेस की खास बात ये है, दिस डेटाबेस यूज मल्टीपल कंपनीज जो कि मोस्ट पॉपुलर कंपनीज इन द वर्ल्ड हैं, वो आपके डीबीएमएस में माइस्क्यूएल का यूज करती हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, याहू, आपके यूट्यूब भी जो आपका डीबीएमएस यूज करता है वो माइस्क्यूएल ही यूज करता है। दिस इज द यूजर फ्रेंडली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और आपका यूजर फ्रेंडली भी होता है, ये किसी भी ओएस पर वर्क करता है। ओके, टाइप्स देखते हैं, टाइप ऑफ यूजर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस पे कितने टाइप्स के यूजर्स वर्क कर सकते हैं? There are mainly 4 types of users, like end users, database administration, DBA, application programmers, and system analysts. The first, end users. Users who use the database for querying, modifying, and generating reports as per their needs. एंड यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स क्रिएट करनी पड़ती है, मॉडिफाई करना पड़ता है, या फिर उन्हें क्यूरीज लगानी होती है, तो वो वह आपके एंड यूजर्स कहलाते हैं। द सेकंड वन इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीएमएस में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मींस एज द नेम इम्प्लीफाइज द डीबीएमएस एडमिनिस्ट्रेटर द डेटाबेस एंड द डीबीएमएस। द डीबीए इज responsible for authorizing access, monitoring its use, providing technical support, acquiring software and hardware resources. एक database administration means कि आपकी जो DBMS है उसको सिक्योर करता है, यूजर फ्रेंडली, कोई भी उसको वर्क इजीली नहीं कर सकता है, उसे वही वर्क कर सकता है इजीली जो उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड एक्सेस कर सकता हो। The next one is application programmers. Application programs write application program to interact with the database. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो एप्लीकेशंस को राइट करते हैं, उसके लिए भी डायरेक्ट डेटाबेस का वर्क कर सकते हैं। These programmers are written in high level language and is equal to interact with the database. वो प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेज में डेटा को टाइप करते हैं, या फिर कहें कोई भी वर्क को हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं और उसे मॉनिटरिंग करते हैं, या फिर कहें इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस से। ओके, द लास्ट वन इज सिस्टम एनालिटिक्स। सिस्टम एनालिटिक्स डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर एंड द डेवलपर्स स्पेसिफिक टू मीट दीस रिक्वायरमेंट आल्सो। द सेम इज एंड यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस आल्सो रिक्वायर द सेम पर्सन द डेवलपर स्पेसिफिकेशन टू मीट these requirement। A system analytics play a major role in the database design and all the technical, economics and feasibilities aspects। जो भी आपके टेक्निकल इश्यूज आते हैं या फिर टेक्नीशियंस होते हैं, वो सारे इकोनॉमिकल हो चाहे फेसिबिलिटीज जो सारी आपके सिस्टम एनालिटिक्स में अवेलेबल होती हैं। लेट अस सी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डीबीएमएस अप्रोच। The need of database management system itself explains the advantage of using DBMS। Following are the advantage of using DBMS। DBMS के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Reduction in redundancy, we can already learn about redundancy, जो आपके redundancies को है वो कम करता है। Improve consistency, the changes of data inconsistencies in the database are also reduced as there is a single copy of data is accessed and uploaded by all the users। ये आपकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है, आपको इंप्रूव करता है, और आपके चेंजेस को भी सिंगल कॉपी पर डेटा को मेंटेन करता है। ओके, इंप्रूव एबिलिटी, सेम इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू डिफरेंट यूजर्स। एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स के लिए अवेलेबल होती है। दिस हेल्प शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वेरियस यूजर्स ऑफ द डेटाबेस। ये आपकी हेल्प करती है डेटाबेस को वेरियस यूजर्स से शेयर करने में। इंप्रूव सिक्योरिटी आल्सो, ये आपकी सिक्योरिटीज को भी इंप्रूव करती है। यूजर फ्रेंडली है, कोई भी इसे वेरी इजीली एक्सेस कर सकता है, वर्क कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है।
limitations of using DBMS approach. DBMS को अप्रोच करने के लिए लिमिटेशंस क्या है कि ये कितना कम होता है. लेट अस सी टू मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ DBMS. हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट काफी हाई है. द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ DBMS सिस्टम इज वेरी हाई. इट इज आल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस which involves analyze users requirement, designing the database application. ये आपका हाई कॉस्ट का होता है, इसमें काफी टाइम कंज्यूम होता है. सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड्स, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं और रिकवरी को भी, इसमें डेटा को रिकवर करने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. दीज आर मेजर लिमिटेशंस ऑफ द DBMS अप्रोच. Relational database. The next one is relational database. Relational database is a database that connect multiple branches in a simple main branch. It means कि आप multiple coding, for example you work in a shop. अगर आप एक शॉप पर काम करते हैं तो आप एक शॉप पर काम करने के बाद आप सप्लाई भी करेंगे, अपने मटेरियल को सप्लाई भी करेंगे, माल्स को सप्लाई भी करेंगे, सेल भी करेंगे या कहीं सप्लाई सेल करेंगे, इसके बाद परचेज भी करेंगे और जिसने आपने लिया है ऑर्डर भी लगाएंगे. ये आप अलग अलग वर्क होंगे. तो आप जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो एक सिंगल फाइल्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करने का वर्क करता है. दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस. Various types of database has been developed. One of them was relational database development by E.F. Code at IBM in 1970. कई सारे डेटाबेस मैनेजमेंट बने हैं बट E.F. Code ने जो कि IBM के इंटेलिजेंट बिजनेस मशीन जो आपकी 1970 में बनी थी, उन्होंने ये बनाया है. It is used to organize collection of data as a collection of relation where each relation corresponds to a tablet of various each rows in a table corresponding to unique instance of data. Relational database means कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, एम्प्लॉयज आईडी, सैलरी, जेंडर, ये सारी जो हैं वो एक ही फाइल में, एम्प्लॉय फाइल में स्टोर हो सकती हैं और हर एक एम्प्लॉय फाइल के अंदर नेम और आईडी, जेंडर, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग आप शो करा सकते हो. दिस इज कॉल्ड relational database example. Okay, this is employee table. In relational model, a row is called tuple, a column is called a attribute, a table is called as a relation, a data is type of value is each column is called the domain, the number of attributes in a relation is called a degree of a relation. These are some. Okay, you also learn in your home. Now next, relational schema. R is denoted by R, A to A, B, where R is a relation name and A to A is the list of attributes. Means main जो list होगी उसका नेम आपने R रखा है, जिसे relation schema बोलते हैं. एंड जो इसकी ब्रांचेस होंगी लाइक A, N, D, J attributes आपके कहलाएंगे. Okay. Now these are some examples of the relational database like name, employees, IDs, and the same as the others one. Okay. Some more characteristics of relations. कुछ characteristics आपके relations की like आपका employees name, gender, and much more information in a one table. This is called relational database. Okay. Now we're gonna the next one is relation model contents. In this video, this is enough for you. So guys, please learn your first lesson carefully. If you have any problem, you just ask me in my WhatsApp group.